Rules for naming of functional group. First point. Select the longest carbon chain. Select the longest carbon chain containing functional group The functional group is numbered. The functional group is numbered in such a way. That the functional group is attached. That the functional group is attached at the carbon atom. Attached at the carbon atom possessing lowest possible number in the chain. Possessing lowest possible number in the chain. Second point. Generally, numbering start from that carbon which have carbon containing functional group. Carbon containing functional group. Carbon containing functional group. But keton is exception. Keton is exception. देखो भाई, नॉर्मली अगर अपने पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करना है. सपोज मेरे पास ये कार्बन चेन, ठीक है, सपोज यहाँ पर मेरे पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप दिया है, तो अब इस केस के अंदर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है? इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट. तो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है. ठीक है, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसी कार्बन से हम नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं. बट कीटोन जो है वो इसका एक्सेप्शन केस है. कैसे एक्सेप्शन केस? अगर सपोज हम कीटोन की बात करें तो कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन जो है इसके दोनों वैलेंसीज पर एल्काइल ग्रुप होता है. ठीक है, दोनों वैलेंसीज पे क्या होगा? एल्काइल ग्रुप है. तो इस केस के अंदर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? इस डायरेक्शन से कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलेगा. ओके, देखो कीटोन एक्सेप्शन केस है. कीटोन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, बट अपन नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे. जहां से जिस एंड से इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना. तो अपन नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 2 3 एंड 4. ठीक है, 1 2 3 एंड 4. और अगर अपने पास अदर देन कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है तो अपन उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. सिंगल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच कंटेन फंक्शनल ग्रुप. और नंबरिंग स्टार्ट कौन से एंड से करेंगे? जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले. ठीक है, और सपोज अगर अपने पास फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है
तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना है, अदरवाइज जहां से लोएस्ट नंबर मिलता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, when naming the functional group, naming the functional group, first write the name of first write the name of substituting group, write the name of substituting group, name of substituting group in alphabetic order. हाँ अमन हो जाइए, आप री एंटर हो जाइए, मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ substituting group in alphabetic order, in alphabetic order, in alphabetic order. Then name of root carbon chain, name of root carbon chain, name of root carbon chain. Okay, Aman. Then primary suffix, then primary suffix, and secondary suffix, secondary suffix according to functional group, according to functional group, according to functional group. Next point, if more than one, if more than one, more than one functional groups present in more than one functional group present in more than one functional groups present in carbon chain, then first set the priority order of functional groups, then first set the priority order of functional group, set the priority order of functional group. Functional group which have more priority, functional group which have more priority use suffix, use suffix, and less priority function group, and less priority functional group act as substituting group, act as, act as substituting group, act as substituting group, and use their prefix, and use their prefix according to alphabetic order, according to alphabetic order. देखो सपोज करो अपने पास ये कंपाउंड है, इसका नेमिंग करना है, ठीक है। इस कंपाउंड नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। प्रायोरिटी ऑर्डर कल अपन ने नोट किया था, जो टेबल थी ना अपने पास वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसका होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, सेकंड प्रायोरिटी सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर था, ओके बेटा। अब देखो यहाँ पर केवल सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग कर दिया मैंने 1 2 3 एंड 4। थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट कौन सा है, मिथाइल। देन 3 मिथाइल ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन फर्स्ट सफिक्स एन,
3 मिथाइल ब्यूटेन। और CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स क्या लगेगा? एल। नहीं नहीं नहीं, सफिक्स लगेगा बेटा इसका, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना? हाँ, ब्यूटेन एल, क्योंकि एल इसका सफिक्स क्या है? एल। लेकिन क्या हो गया? 3 मिथाइल ब्यूटेनल। 3 मिथाइल ब्यूटेनल। थोड़ा जूम कर दें, ये लो, ठीक है बेटा? ओके। अब देखो अपन इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? वापस इसके अंदर कुछ अपने पास ट्राइबल सिस्टम की नेमिंग भी आएंगे, और फिर अपन उसके साथ साथ उनका जो आईयूसीएन नोमेनक्लेचर है वो भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या था अपने पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फर्स्ट हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेमिंग करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स कार्बोक्सी है और सफिक्स ओइक एसिड है। फर्स्ट मेंबर की बात करें तो कार्बन के पास यहां पे जो वैलेंसी है, इसका फर्स्ट मेंबर HC डबल बॉन्ड OH। कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। एंड IUPAC नेम वन कार्बन चेन मींस मीथेन। मीथेन वन कार्बन चेन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का केस हो ही नहीं सकता, इसलिए डायरेक्ट अपन क्या लगा? मीथेन। और साथ में क्या लगेगा? सफिक्स ओइक एसिड। नेम मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। सेकंड CH3C डबल बॉन्ड OH, टू कार्बन चेन 1 and 2। आईयूपीएसी नेम इथेन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। देखो नंबरिंग करें अपन, डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, प्रेफरेंस किसको मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप को। नंबरिंग किया 1 2 एंड 3। 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन के लिए रूट वर्ड क्या है? प्रोप। सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड है, सो प्रोप 2 इन। प्रोप 2 इन एंड 1 ओइक एसिड। prop 2 in 1 oic acid। Next one, CH triple bond C, CH and C double OH। अब देखो यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है साइक्लोप्रोपाइल, ट्रिपल बॉन्ड आइन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओइक एसिड। तो फर्स्ट हमें क्या करना है? नंबरिंग स्टार्ट करना है, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन चेन है। कौन सा ई को डिस्प्लेस करना बेटा? कौन सा ई को रिप्लेस? देखो हाँ, प्रोपीन ओई को एक कर सकते हैं अपन, कंप्लीटली लिखेंगे अपन, दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो अपन लिखते हैं इस तरह से। हाँ, अगर दोनों को एक साथ लिखना है तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने दोनों को सेपरेट करके लिखा है, इसलिए मैंने पूरा नेमिंग किया है 2 इन 1 ओइक। दोनों को एक साथ लिखते तो इनोइक कर देते अपन इसको, ठीक है? और जब इनोइक करते तो अपने पास ये जो ई है ये रिप्लेस हो जाता, ठीक है? बट अभी अपन दोनों को सेपरेट करके लिखा है। अब देखो यहाँ पर सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, कौन सा है? साइक्लोप्रोपाइल। तो 2 साइक्लो
2-cyclopropyl bute, 2-cyclopropyl bute, 3-ine 1-OH, 3-ine and 1-OIC acid, 2-cyclopropyl bute, 3-ine 1-OIC acid. नेक्स्ट वन देखो, ऑक्सैलिक एसिड, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट किया है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको प्रायोरिटी मिलेगा उसके बाद, ठीक है ना। जो रूट चेन है उसके अंदर प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में इन और आइन यूज में रहता है। अब देखो नेक्स्ट देखो अपने पास ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का आईपीसी नेमिंग करना है अपने को। ऑक्सैलिक एसिड आईपीसी नेमिंग करें स्टार्ट 1 एंड 2 कार्बन चेन, ठीक है। दोनों कार्बन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, ओइक एसिड, ठीक है। और 2 कार्बन चेन के लिए रूट वर्ड क्या आता है, एच, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन, क्या बन गया, इथेन, देन 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन ओइक ग्रुप है और दोनों सिमिलर ग्रुप है तो प्रेफरेंस ऑर्डर की दिक्कत है ही नहीं यहां पर, तो दोनों ग्रुप एक जैसे ही है। तो डाइओइक एसिड, अब देखो कल ही क्लास में किसने कहा था कार्ब ओइक वर्ड यूज में लेते हैं या कार्ब एल्डिहाइड वर्ड यूज में लेते हैं, तो वो केस देखो अब क्या होता है। आईपीसी कहेगा कि अगर तेरे पास सेम प्रायोरिटी वाले मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, सपोज ये कंपाउंड है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है तीनों फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सेम है, ठीक है। तो आईयूपीएसी क्या कहता है कि या तो अपन क्या करें, ये तीनों जो फंक्शनल ग्रुप है उनको रूट कार्बन चेन में इंक्लूड करें। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इन कार्बन को अपन इंक्लूड कर सके रूट कार्बन चेन में, तो हमको क्या करना है, इन कार्बन को रूट चेन में इंक्लूड करना है। बट ये तीनों कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो रूट चेन में इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि रूट चेन क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, अदरवाइज 1 2 3 4 या 1 2 3 4। एक फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। अब यहां पर पॉइंट क्या है कि अगर तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंक्लूड करो, मैंने कहा कि आईयूपीएसी क्या बोल रहा है अपने पास कि जो सेम प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप है उनका कार्बन जो है वो रूट चेन में इंक्लूड होना चाहिए ना। अब अगर मान लो यहां पर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड 5। उस केस के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा अपने पास, ठीक है, जिसका कार्बन रूट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो आईयूपीएसी ने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो सारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो रूट चेन में इंक्लूड होना चाहिए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो उस केस में क्या करें, इन तीनों के कार्बन को ही इंक्लूड नहीं करना, तीनों को एक्सक्लूड करना। और अगर तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे अपन तो रूट कार्बन चेन कितने कार्बन का हो गया, ऑनली 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि तीनों कार्बन जो है एंटर नहीं हो सकता तो तीनों क्या कर दिया अपन ने, बाहर कर दिया। तो अब रूट कार्बन चेन कितने कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का। अब रूट चेन तो 3 कार्बन का हो गया, बट ये जो फंक्शनल ग्रुप है अब इनका नेमिंग क्या करें, क्योंकि ये तो रूट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहे।
रूट चेन में इंक्लूड होता तो सफिक्स ओइक लग जाता। तो अब इस केस के अंदर उसने एक अपने को फैसिलिटी दी। क्या कहा उसने कि अगर अपने पास, हाँ बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, वरना तो क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर आ जाएगा बेटा, है ना। तो अब आईयूपीएस ने एक फैसिलिटी दिया कि अगर सपोज करो मेन फंक्शनल ग्रुप है और मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी प्रेजेंट है, बट वो कार्बन रूट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। फंक्शनल ग्रुप which contain carbon atom but it not included in root carbon chain, then use prefix carb, then use prefix carb। फॉर एग्जाम्पल यहां क्या आएगा, कार्ब ओइक एसिड, अदरवाइज अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है, कार्ब ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज एल्डिहाइड होता देन कार्ब एल्डिहाइड, नाइट्राइल ग्रुप होता देन कार्ब नाइट्राइल, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके नेम के पहले अपन क्या लगाना है, कार्ब वर्ड यूज करना। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक के पहले क्या यूज में लिया अपन ने, कार्ब। तो नेम क्या हो गया, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 2 3 ट्राई कार्बोइक एसिड। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम चीज। सपोज मेरे पास बेंजीन है और बेंजीन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, ओके। तो रूट चेन क्या अपने पास, बेंजीन 6 कार्बन चेन है। अगर अपन इसको प्रेफरेंस भी दें तो फिर अपन क्या बोलेंगे, इसको सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप बोलेंगे, 1 फिनाइल मिथेनोइक एसिड, 1 फिनाइल मिथेनोइक एसिड। और अगर हम बेंजीन को रूट चेन के फॉर्म में यूज में ले रहे हैं तो उस केस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन रूट चेन में इंक्लूड नहीं है, तो यहां पे अपने पास वर्ड क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिस कंपाउंड में COOH ग्रुप रूट चेन में काउंट नहीं हो रहा वहीं पे इसका क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बिल्कुल, डबल बॉन्ड हटकर सर्कल भी बनता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो बेंजीन में रेजोनेंस होता है, जो सर्कल होता है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कंटिन्यू क्या होता है, डिलोकलाइज्ड होता है, इसलिए रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखो सेकंड चलते हैं अपन फंक्शन ग्रुप सल्फोनिक एसिड, SO3 है सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक एसिड SO3H, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 SO3H, 2 कार्बन चेन, so इथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड या इथेन 1 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इथेन में 2 कार्बन चेन है तो किसी भी कार्बन जिसमें SO3H ऐड होगा वो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो इथेन सल्फोनिक एसिड। सेकंड एग्जांपल CH3 CH SO3H एंड CH3। अब यहां पर नंबरिंग मस्ट है भाई, 1 और 2 कार्बन चेन में तो नंबरिंग नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 कार्बन चेन आया तो नंबरिंग पॉसिबल है बिकॉज़ सल्फोनिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे करता है सेकंड पे। So in that case propane to sulfonic acid,
बेंजीन का रिएक्शन क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। साइक्लिक कंपाउंड पे सेलेक्ट किया, साइक्लो पेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड, साइक्लोपेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड। बिकॉज सल्फोनिक ग्रुप में कार्बन नहीं है, इसलिए वो इंक्लूड एक्सक्लूड कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, इसका कार्बन जो है वो रिंग में है, रूट चेन में है। साइक्लोपेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड। पर अगर सपोज करो ऐसा कंपाउंड आ जाए, ये कंपाउंड है। अब देखो यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। फर्स्ट कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। सेकंड फंक्शनल ग्रुप SO3H। प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है सल्फोनिक कंपैरिजन। तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है इसका तो सफिक्स यूज में लेना है, कौन सा? ओइक एसिड। और जिसका प्रायोरिटी कम है वो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और इसका सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इसका सफिक्स क्या है? सल्फो। ठीक है, तो बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हाँ 5 का अंशुल, बिल्कुल सही बताया आपने केशव, 5 का होगा। देखो 1 2 3, देन C2H5 है। C2H5 का मतलब यहाँ पर 2 कार्बन चेन है, मींस CH2 and CH3। तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन चेन, 5 नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप क्या है? थर्ड कार्बन पे मिथाइल और सेकंड कार्बन पे सल्फो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नेमिंग करें, 3 मिथाइल, 2 सल्फो, देन पेंटेनोइक एसिड और पेंटेन 1 ओइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड और पेंटेन 1 ओइक एसिड। ये हो गया अपने पास सल्फोनिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग नेक्स्ट 4 functional group which are also called